مقبوضہ کشمیر بھارت میں ضم کرنے کی سازش بے نقاب ہونے پر برطانیہ میں کشمیری رہنماؤں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ کشمیری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے غیر کشمیریوں کو کشمیر میں آباد کرنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ کشمیری عوام مودی کے اس مذموم منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کشمیری رہنماؤں نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے انسانیت سوز اقدامات کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری کو سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج ہم پھر یہ دہراتے ہیں ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو، خاص طور پر جو اس میں سٹیک ہولڈرز اور آل دا 5 سیکورٹی کونسل ممبرز، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، یونائٹڈ کنگڈم ہو، فرانس ہو، رشیا ہو، China, we are enforcing on to them کہ بھئی اس مسئلے کو سیریسلی لے لو۔ It will be the same situation جیسا کہ آپ نے فلسطین میں دیکھی۔ لندن کے علاقے ساؤتھ کینسنگٹن کے ہیرن پاؤل ہاؤس میں ہونے والی اس کانفرنس میں بیرسٹر مجید ترمبو، پروفیسر نذیر شال، زبیر آوان اور یاسر احمد نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہندوستان کا جو ڈاکٹرن ہے، خاص طور پر جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، اس کا نام ہے اجیت ڈوول۔ اجیت ڈوول از اے ہارڈ لائنر ہندوتوتا، ویری ریڈیکل پرسن۔ اس کی پالیسی آن کشمیر از دا ون دیٹ ہیز رن اوور دا لاسٹ 5 years and that is his policy for Kashmir کہ to finish it once forever there has to be demographic change. Therefore یہ سچویشن جو ہے بالکل خطرناک ہے اور ہمارے حساب سے، ہمارے انالیسس کے حساب سے جو یہ کیمپین اس وقت چل رہی ہیں سارے بھارت میں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی الیکشن کیمپین میں غیر کشمیریوں کو کشمیر میں زمین دلانے کے گمراہ کن وعدوں کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی پرومس کرتی ہیں، وعدہ کرتی ہیں ہندوستانی قوم سے، اگر آپ ہمیں حکومت دو گے، حکومت ہم کریں گے تو ہم کشمیر میں فریڈم سٹرگل کا ٹوٹل صفایا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکار کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی اسرائیل کے ماڈل پر عمل کرنا چاہتی ہے، جس کی کشمیری کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ میں تو کاؤنٹلیس ریزولوشنز ہیں کشمیر کے لیے، لیکن ایسا ابھی تک کچھ ایسا نتیجہ نہیں نکلا۔ تو ہمیں ابھی اپنی طرف سے یہی کرنا چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ انٹرنیشنلائز کیا جائے، اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ کشمیر فیوچر کا فلسطین ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کی اس کو بس اویئرنیس کریٹ کرنی اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ 370 اور 335A کو جو ختم کرنے کی بات ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اپنے طور سے ہندوستانیوں کو ادھر مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو جائیداد حاصل دلوانا چاہتے ہیں، ان کو نوکریاں دلوانا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک ڈیموگرافک چینج ادھر لانا چاہتے ہیں کہ جو کشمیری میجورٹی ہے، مسلم میجورٹی پرٹیکولرلی، وہ ختم ہو جائے اور ہندو میجورٹی سامنے آ جائے۔ کا ایگزامپل ہے فلسطین کی، اسرائیل نے جس طرح سیٹلرز کے تھرو وہاں پہ قبضہ کیا ہے، یہ بالکل ویسی ہی ایک سازش کشمیریوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کو پس پوش ڈال کر کشمیریوں کی اور کشمیر کے اندر جو ہندو سیٹلرز ہیں ان کو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر عبدالمجید ترمبو نے جیسا کہ بڑے واضح طور پہ ایکسپلین کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے پاکستان کا کردار، پاکستانی عوام چونکہ بہت کنسرنڈ ہیں، تشویشناک بھی ہیں اس معاملے میں، کہ تشویش بھی رکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں پہ حکومت پاکستان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں اس کیس کو بہت ہی ایکٹیو طریقے پہ لے کے جائیں اور انشور کریں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، کہ جو انڈین اب ایک ڈائریکٹ انداز میں کشمیر کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو روک تھام کے لیے جو بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو تیز کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اقوام متحدہ، یورپین یونین اور OIC سے رابطہ کر کے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان ضمیر حیدر کے ساتھ کنزرویٹو پارٹی UK کے چیئرمین برینڈن لیوئس کا پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ جب سے برطانیہ کی برٹش ایئر ویز نے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، برطانوی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔
बरतानिया की सबसे बड़ी कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन MP ब्रेंडन लियोनस ने कहा है कि उनका हालिया दौरा पाकिस्तान नहायत खुशगवार रहा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सदर मुमलकत आरिफ अलवी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आला हुकाम से मुलाकातें की, जो कि इंतहाई मुस्बत रहीं। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम कर रहा है। कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ज़मीर हैदर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए ऐसे दौरे होने चाहिए ताकि सरमायाकारों का एतमाद बढ़े। एक सवाल के जवाब में ब्रेंडन लियोनिस ने कहा कि बरतानवी सियासत में पाकिस्तानियों के किरदार इंतहाई अहम है और बरतानिया में अहम पोजीशनों पर भी पाकिस्तानी निजात बरतानवी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्टर आलिया अफजल ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तानी बरतानिया में हर शोबे में आगे आ रहे हैं और हालिया बल्दियाती इलेक्शन में भी पाकिस्तानी निजात बड़ी तादाद में जीत कर आगे आए हैं। गुलाम सैनवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, UK। मिडलैंड्स क्रिश्चियन कम्युनिटी का नवा सालाना कन्वेंशन बर्मिंघम के नवाही चर्च में मुनक्किद हुआ, जिसमें मिडलैंड्स भर के क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदगान और बेहतर कारकर्दगी के हामिल अफराद को मेडल्स दिए गए। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली, ख़ास तौर पर कश्मीर और बरतानिया में अमन व इंसाफ के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। बर्मिंघम के नवाही इलाके के चर्च में मसीही बरादरी के 9वें सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मजहबी रहनुमा पास्टर जॉनसन पॉल ने बाबरकत कलाम पेश करते हुए कहा कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करके नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। नवे सालाना कन्वेंशन के मौके पर मिस्टर एंड मिसेस जावेद इनायत को उनकी कम्युनिटी के लिए समाजी, सहाफती और मजहबी खदमात को सराहते हुए मेडल दिए गए। इस दौरान मिसेस जॉनसन पॉल ने गीत पेश किया, जबकि दीगर गुलकारों ने भी लाइव परफॉर्मेंस और मजहबी गीतों के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। इस दौरान पादरी मार्शल जमान, मिसेस जॉनसन पॉल, पास्टर अजमल चोगताई और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस कन्वेंशन का मकसद कम्युनिटी को एक जगह जमा करना और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए जिम्मेदारियां नए लोगों के हवाले करना है। आज का जो कलाम था ये रूहों को आज़ाद करने के लिए, और उसमें किसी की कोई वो नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि वो किसके लिए आया, वो सभी के लिए आया। जैसे कि उसने कहा कि मैं दुनिया में आया हूँ ताकि सभी निजात पाएं। मेरे अजीजों, मैं आप सबको खुदावंद यीशु अल मसीह में सलाम अर्ज करते हुए आपकी सलामती चाहता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह सलामती का शहजादा है। जहाँ कहीं भी कोई भी दहशतगर्दी होती है तो हमें नई जिंदगी अपनानी है और हमें दहशतगर्दी के खिलाफ अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे और अक्ल, दानिश, फहम से नवाजे कि हम दहशतगर्दों को कंट्रोल कर सके और दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सके। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं यहाँ पर आकर वॉलसल में खुदावंद के खादम पास्टर जॉनसन पॉल का पैगाम सुना, जिसके वसीला से हमें बहुत सारी बरकत मिली है, बहुत सारी दुआएं हुई हैं। और मैं पास्टर मार्शल के लिए दुआ करूंगी कि खुदावंद उनको बहुत सारी बरकत दे और यहाँ की कलीसिया को और ज़्यादा तरक्की और तवानाई से इस्तेमाल करे। आज हम क्रिश्चियन वे लाइफ ऑफ चर्च के कन्वेंशन में जो है वो हम शिरकत हुए हैं। यहाँ पर कन्वेंशन के अंदर खसूसी तौर पर श्रीलंका का जो सानिया हुआ, ईस्टर के मौका पर उन लोगों के लिए, उनके खानदानों के लिए जो शहीद हुए, खुसूसी दुआएं की गई। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत सारी उनकी शिफा के लिए, अमन के लिए दुआएं की गई। आज हमने इस कन्वेंशन में आकर बहुत बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू इंग्लैंड, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो मार्शल ने कन्वेंशन का दिन रखा, और इस कन्वेंशन में बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई और बहुत अच्छा मैसेज रहा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सब इसी तरह से बहुत बरकत मिली और ये कलाम सुना, मैसेज सुना, बहुत ही पावरफुल था। और हमारी दुआ है कि इस तरह खुदा उनका नाम जो है
अपने लोगों के ज़िंदगी में वसीला से जलाल पता जाए। बहुत अच्छा लगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हमने मिस किया, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की इबादत का एहतमाम हर संडे होता है और हर कन्वेंशन का इसी तरह से हम एहतमाम करते हैं, और जितने भी मसीही हैं वो उसी तकद्दुस के साथ वहाँ पे भी किया उन्होंने, और आज यहाँ पे भी उसी तरह से हमने सारी इबादत को बहुत से मसीही रहनुमाओं के साथ हमारी मुलाकात हुई। आखिर में पास्टर मार्शल जमान ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन जावेद इनायत के साथ आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान एम्बेसी आयरलैंड के हेड ऑफ चांसरी शहजाद नौशेरवानी ने पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर वजाहती बयान जारी किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तानी सिफारत खाने में वीज़ा सेक्शन के औकात तब्दील हो चुके हैं। शहरी की बदतमीज़ी पर नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तफसीलात जानेंगे डबलिन से हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्ज़ा से। जी फैसल, वाक़या क्या हुआ और सिफारत खाने का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी, आज हम मौजूद हैं डबलिन एम्बेसी में हेड ऑफ़ चांसरी शहजाद नौशेरवानी के साथ। जो एम्बेसी की इस वक्त की जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर ही रोशनी डालेंगे। शहजाद, वेलकम टू 92 न्यूज़। बताइएगा रमज़ान के बारे में कुछ अपडेट्स। थैंक यू फैसल। सबसे पहले तो मैं एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे आयरलैंड में और यहाँ की टोटल मुसलमान कम्युनिटी को रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगा, और आई होप कि यू हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड। और रमज़ान के हिसाब से टाइमिंग्स हम लोगों की थोड़ी चेंज हुई हैं। नाउ वी ऑपरेट फ्रॉम जो एम्बेसी इटसेल्फ तो जो है 9 to 3 हमारी खुली होती है, बट जो कॉन्सुलर सेक्शन है वो मंडे टू थर्सडे 10 से 1 बजे है डॉक्यूमेंट सबमिशन टाइमिंग्स, और 2 to 3 है डॉक्यूमेंट कलेक्शन टाइमिंग्स। फ्राइडे को है जी 10 to 12:30 सबमिशन टाइमिंग्स और 12:30 to 1 कलेक्शन टाइमिंग्स। तो ये काइंडली नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों की तवज्जो से सबको कहूँगा कि टाइमिंग्स जो है वो आप लोग इसकी ज़रा फॉलो कर लीजिए। सो बताइएगा ई वीज़ा के बारे में कुछ। जी, ये अभी रिसेंटली हम लोगों को 1-1.5 हफ्ता हुआ है इसको। आई थिंक 29 अप्रैल से इसकी इनकाद हुआ था, और ओवर वीकेंड्स लोग सारे मिशंस ने ट्रेनिंग इसकी हासिल की हेड क्वार्टर से, और आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू गाइस दैट 170+ कंट्रीज़ के सिटीजन्स को इंक्लूडिंग आयरलैंड के, दे हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा फॉर पाकिस्तान अपने घर बैठे हुए। अपने घर बैठ के वो अप्लाई करेंगे, उनको घर पे ही वीज़ा मिल जाएगा, और लिटरली इसको 1-2 दिन भी नहीं लगते आजकल इस प्रोसेस में। सो फैमिली वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा ऑन अराइवल, ये सारी कैटेगरीज आयरलैंड के लिए एप्लीकेबल हैं। सो ये खुशखबरी भी आप लोगों के तवज्जुह से मैं देना चाहता हूँ। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, एक आउट ऑफ टाइमिंग किसी एक पाकिस्तानी ने आकर यहाँ पे बदतमीज़ी भी की और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया, क्या कहिएगा उसके बारे में? फैसल, सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं कि जो भी एम्बेसी के लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, किसी के साथ भी किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। आप किसी को भी आके गालियाँ निकालेंगे तो एनीबडी वुड रिएक्ट। पब्लिक स्पेक्टिकल क्रिएट करना किसी के फ़ायदे में नहीं है। और जो मौसूफ इधर आए थे, अगले दिन उनका फिर चक्कर लगा अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में। उनसे फिर मेरी खुद भी तफसीलन बात हुई, उनको भी मैंने क्लियर किया। बाकी सबको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स और वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, लेकिन किसी बंदे को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आके यहाँ पे बदतमीज़ी करे या गालियाँ निकाले या कोई हरासमेंट करे या वीडियो निकाल के थ्रेटन करे। आप देखें ये बिहेवियर किसी ऑफिस में शायद टॉलरेट ना हो, तो वी हैड मैनी ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट कि हम उससे डील कर सकें। उसके डॉक्यूमेंट रोक सकते थे, वी कुड हैव कॉल्ड गार्ड, लेकिन एस्केलेशन का कोई पॉइंट नहीं। सो वी मूव फॉरवर्ड। द गाय ऑल्सो सो द एरर ऑफ हिज वेज और ही अपोलोजाइज्ड, एंड आई थिंक इट एंडेड ऑन अ फाइन नोट। बट लोगों को ध्यान करना चाहिए, इट्स एम्बेसी आप लोगों की एम्बेसी है, आप लोगों के लिए खुली है, लेकिन इसकी इज़्ज़त करना आप लोगों का भी फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच सर। जी, आप देख सकते हैं कि शहजाद नौशेरवानी हेड ऑफ़ चांसलर, इनका कहना है कि एक तो रमज़ान की टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ की गई हैं, ई वीज़ा का इजरा कर दिया गया है, और तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं अपने किसी भी काम के लिए, उन्हें यहाँ का जो माहौल है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसमें पॉजिटिवली इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना जो काम है वो पॉजिटिवली कर सकें।
फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी नयाद शहरी इफ्तिखार अहमद का कहना है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इंसाफ के मामले में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जुराइम पेशा अफराद के रिश्तेदार अदालती अमल पर असरअंदाज होते हैं। बेटे के कातिलों को सजाए मौत मिलने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। एक तो ये अलमिया है कि एक हार्ड कोर क्रिमिनल के भाई वगैरह सेशन कोर्ट में मुलाजिम है, क्लर्क बादशाह को कहना कि इन्हें डेटे वगैरह देते रहे। तो ये देखे केस तकरीबन 5 साल इसे लगे हैं उन्हें सजा होने के लिए। फिर मैंने हाई कोर्ट में भी किया था अपना, उन्होंने कहा कि देखिए इसको स्पीड अप किया जाए, तो उसकी वजह से फिर इसका फैसला हो गया। सजाए मौत नहीं हुई उन्हें अपना उम्र कैद की 2 दफा उम्र कैद की सजा हुई है। मेरे ख्याल में ये बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने बच्चे को अगवा किया, फिर उसे बच्चे को मारा, फिर बड़े चालाकी की, उसके अपना बॉडी को अपना छुपाने की भी कोशिश की। तो ये बहुत कम सजा है, इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल गैंग है। तो इनके पहले भी रिकॉर्ड वगैरह थे। अशरफ अभी वो एक नामी ग्रामी क्रिमिनल था, उसके पहले भी उसने अगवा किए। मंशियात में अभी भी वो मंशियात में भी एक केस में उसे सजा वगैरह हुई है, केस चल रहा है। तो इस तरह की ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है, तो इन्हें इस तरह की सजा देना सजा बहुत लीनियन है। अमरीकी रियासत डालास टेक्सास में अदबी तंजीम अदब बस्ती ने शेर व अदब की महफिल सजाई। मेहमान खुसूसी हफीज़ खान ने तंजीम अदबी बस्ती के क़याम को उर्दू अदब के लिए संगे मील करार दिया। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत डालस टेक्सास में अदबी तंजीम अदब बस्ती के ज़रिए एहतमाम महफिल मुशायरा हुआ। शाम ढले को देखा था वो रूप खजाना, और लंबी गर्दन सुराही जैसी आंखें कब थी था मैं खाना, लांबे गैसू पाँव चूमे होंठ सुनाए गीत सुहाना, और मेरी तो तुम बात ही छोड़ो मैं तो हूँ दिल फेंक पुराना। लोट पोट थे सभी उसी पे, क्या बच्चे क्या दादा नाना, और लबे सड़क वो चलती जाए पीछे ताक में था दिया। निजामत के फ्राइज फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने अंजाम दिए। सुखन है मेरा सुखन में जमाल तेरा है, वाह वाह वाह, और तेरे खुलूस की है दिल रविश नहीं बदली, तेरे खुलूस की है दिल रविश नहीं बदली, बस एक जैसा ही माजी और हाल तेरा। मुबशर वरैच ने तंजीम अदब बस्ती के अगराज़ो मकासद बताए। मुशायरे की सदारत पाकिस्तान सोसाइटी के सदर आबद मलिक ने की। बिजनेसमैन हफीज खान मेहमान खुसूसी थे। अच्छे लगे रह गुजारे इश्क के सब पे चुखम, अच्छे लगे ए खुशा तारिक इसे कहते हैं हुस्ने इत्तिफाक, वो हमें अच्छे लगे और उनको हम वाह वाह। अदब बस्ती के मुशायरे में यूनस, तारिक हाशमी, नादर दुरानी, गजाला हबीब, अमानुल्लाह, दिल हसान, हाशमी फरहान सईद ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे के मेहमान खसूसी मुमताज़ बिजनेसमैन हफीज़ खान ने अदबी तंजीम अदब बस्ती को अमरीका में उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए संगे मील करार दिया। दुबई में परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स की जानिब से दुबई में मौजूद मजदूरों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें दुबई के महकमे के आला अफसरान समेत परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स के वाइस चेयरमैन अहमद अल मुअस्सिम, परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स के जनरल कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद और बैतुल खैर सोसाइटी के असिस्टेंट मैनेजर अब्दुल्ला अल उस्ताद ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तार डिनर का अहवाल जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। माह सियाम की आमद है, जिसकी मुनासबत से परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स दुबई ने खास तौर पर मजदूरों के लिए पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इफ्तार डिनर में दुबई भर से मजदूरों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर की खास बात यह थी कि दुबई के सरकारी महकमे के आला अफसरान और इंतजामिया ने एक सफ में बैठ कर मजदूरों के साथ रोजा इफ्तार किया, इनके साथ बैठ कर खाना खाया। इस मौके पर परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स के जनरल कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद ने खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि दुबई हुकूमत मजदूर को खास मुकाम देती है। ये हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन है कि मजदूर की वजह से ही दुबई आज नंबर 1 है, इसीलिए उन्होंने मजदूर के साथ इफ्तार का प्रोग्राम बनाया। रोजा के बाद इफ्तार होता है,
اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں مزدور کے بارے میں، اسی لیے ہم لوگ آج مزدوروں کا ساتھ افطار کیا. یہ ہمارا کا ویژن ہے. ہر انسان یو اے ای میں یا دبئی میں رہتا ہے، ہمارا گورنمنٹ کا شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کا ویژن ہے کہ انسان کو انسان سمجھو. اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ نمبر 1 ہے. نمبر 1 ایسا نہیں بولتے ہیں باتوں سے، نہیں، کردار سے. اسی لیے ہم لوگ بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگوں کو جو تم لوگ تشریف رکھے. پرماننٹ کمیٹی آف لیبر افیئرز کے وائس چیئرمین احمد المعصم اور بیت الخیر سوسائٹی کے اسسٹنٹ مینیجر عبداللہ الاستاد نے افطار ڈنر میں شرکت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے مزدوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی. دبئی کے لیے ان کی لگن اور محنت کی تعریف کی. افطار کے بعد باجماعت نماز مغرب ادا کی گئی. نماز مغرب کے بعد مزدور کے ساتھ انتظامیہ نے وقت گزارا اور ان کے مسائل سنے. دبئی حکومت کی جانب سے مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یقین دہانی کرائی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنا اختتام کو پہنچا. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.